वेलकम बैक फ्रेंड्स। क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कंप्लीटेबल फ्यूचर के बारे में। ये एक जावा 8 का नया फीचर है जो कि बहुत यूज़ में आ रहा है इन केस ऑफ असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। और अगर आपको पैरेलल प्रोसेसिंग बेसिकली करनी है तो उस केस में आप कंप्लीटेबल फीचर को यूज़ करेंगे। बट there are certain usages of completable future because of which it is being used widely. So it provides asynchronous execution. So basically you can compute, you can do computation asynchronously with multiple threads at a time. तो ये आपको concurrent operations करने के लिए enable करता है आपको basically to do concurrent operations in Java with the high performance of the application basically, right? So next, like, it enables you to avoid blocking operations and utilize systems resources more efficiently. सो नेक्स्ट है बेसिकली नॉन ब्लॉकिंग कंपोजिशन। इस तरीके से बेसिकली मैं आपको आज कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे इन फ्यूचर। आपको इस चीज़ के लिए गाइड करेंगे कि आपको कंप्लीटेबल फ्यूचर क्यों यूज़ करना चाहिए। सो नेक्स्ट है नॉन ब्लॉकिंग कंपोजिशन। नॉन ब्लॉकिंग कंपोजिशन इज बेसिकली मल्टीपल असिंक्रोनस ऑपरेशंस यू कैन परफॉर्म विदाउट ब्लॉकिंग। ठीक है ना। तो you can read that definition. Completable feature allow you to complete multiple asynchronous operations and define dependencies between them. You can chain completable feature instances together using various combinations like then apply, then accept, and then combine are the methods which are being used in completable feature. This enable you to build complex asynchronous workflows and easily express dependencies between different tasks. Next is exception handling. So in completable feature you can do exception handling also. Completable feature provides built-in exception capabilities. You can handle exceptions that occur during the execution of asynchronous tasks using methods like exceptionally and handle. This makes it easy to handle errors and propagate them correctly through the completable feature. Next is completion callbacks. सो बेसिकली कंप्लीशन कॉलबैक्स आर दोज कॉलबैक्स जो लाइक कॉलबैक क्या होता है। बेसिकली कॉलबैक होता है कि आप किसी फंक्शन के परफॉर्म होने के बाद क्या कॉल करते हो। कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम क्या कॉल करते हो, दैट इज कॉल्ड कॉलबैक। तो completable feature allow you to attach callbacks that will be invoked when the completable feature completes there normally or exceptionally. You can use method like when complete, handle, exceptionally, or to specify actions to be taken upon completion. This helps in performing additional processing, logging or error handling based on the completion status of the completable feature. Next होगा combining multiple results. तो this will help you to combine multiple results in one result. मतलब अगर सपोज करो आपके पास 5 फंक्शंस हैं, आप उन 5 फंक्शंस को रन करना चाहते हो पैरेलली, तो आप 5 फंक्शंस को एक मेथड में लाके सप्लाई, यहाँ पे आपको लिखा होगा आगे, यहाँ पे सिंक सप्लाई एसिंक और रन एसिंक करके आप उनको मेथड्स को कॉल करेंगे तो आपका वो इजीली मल्टीपल मेथड्स कॉल हो जाएंगे। उसके बाद आप उनको एट द एंड आप उनको कंबाइन कर सकते हो, राइट। तो यही होता है बेसिकली combining multiple results. So all of is a method which is being used to combine any of the combining result in future. You can wait for all the completable features to complete or get the result of the faster completable feature. This will help you need to wait multiple asynchronous operations to finish and collect their results. Next है timeout handling. So timeout handling is basically ये प्रोवाइड करता है आपको कि टाइम आउट्स को कैसे हैंडल करना है, लाइक कंप्लीशन ऑन टाइम और टाइम आउट. यू कैन स्पेसिफाई अ टाइम ड्यूरेशन एंड टेक एक्शन इफ द कंप्लीटेबल फीचर डज नॉट कंप्लीट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम. मतलब आप उसमें लिमिट लगा सकते टाइम की कि इतने टाइम में ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और फिनिश हो जाना चाहिए, नहीं होता तो क्या करना है.
दिस allow you to control the maximum execution time of the asynchronous tasks. नेक्स्ट है इंटीग्रेशन विद जावा स्ट्रीम API. तो completable feature integrates very well with the JavaScript API, allowing you to perform parallel processing of the stream element asynchronously. You can use completable feature sync, supply async and run async, along with the stream operations like map, filter or reduce, to leverage the benefits of parallelism or asynchronous एग्जीक्यूशन. देखो दोस्तों, इसमें इसने वही बताया है कि आप ये दो मेथड्स यूज़ करके मैप को, फिल्टर और रिड्यूस को भी यूज़ करके स्ट्रीम के आप पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हो और एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन कर सकते हैं. अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कोड कि आप इसको कैसे कोड कर सकते हैं. ये कोई ख़ास बड़ा कोड नहीं होता, 4-5 लाइन का कोड है जो कि वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी टू परफॉर्म है. तो इसके अंदर एग्जीक्यूटिव सर्विस होती है बेसिकली, जो कि कॉल होती है. एग्जीक्यूटिव सर्विस क्या करती है, आपके लिए मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट करती है. तो इसमें आपने देखा होगा यहाँ पे एक थ्रेड पूल दिया गया है. थ्रेड पूल डिफाइन करता है कि आप कितनी थ्रेड्स पैरेलली रन करेंगे. तो अगर आपने 5 थ्रेड्स यहाँ पे लिखी हैं तो आपकी 5 जो थ्रेड्स होंगी वो आपकी पैरेलली रन करेंगी. और उसके बाद यहाँ पे आपका ये मेथड देंगे, आप जिस मेथड को आपको रन करना है तो उसमें आप फ्यूचर का नाम देंगे उसके बाद, और उसका रिटर्न टाइप जो होगा वो बुलियन यहाँ पे दिया है रिटर्न टाइप इन्होंने. तो इस मेथड का जो रिटर्न टाइप होगा वो बुलियन होगा, और उसमें ये अलर्ट्स आप पास कर रहे हैं. बेसिकली ये प्रोसेसिंग ऑफ अलर्ट्स है. और कंप्यूटेबल फ्यूचर डॉट ऑल ऑफ मीन्स ये सब इसके रिज़ल्ट को, अपना सारे रिजल्ट्स को इसके अंदर सेव कर लेगा. अब उसके बाद जब ये मेथड आपका हो गया, अब आप इसको फिर कंबाइन करते हो ये सारे फीचर्स को, मतलब जितने भी आप अभी है तो हमने एक ही मेथड लिखा है, ऐसे आप करके 4-5 कितने भी मेथड्स आप बना सकते हो यहाँ पे. उन सब मेथड्स को ज्वाइन करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं ताकि ये एक एरे बन जाए और एरे का आपको रिस्पॉन्स मिल जाए. राइट. अब इसको फिनिश होने के लिए आपको यहाँ पे गेट करने की ज़रूरत है. तो ये गेट आप जब करेंगे तब आपका रिस्पॉन्स यहाँ पे गेट हो जाएगा. राइट. उसके बाद नीचे आपने ट्राई कैच लगा रखा है, और ट्राई कैच के अंदर आपने एक्सेप्शन कैच करी हुई है कि वो सेंड नहीं कर पाया अलर्ट्स जो है. और उसके बाद लास्ट फाइनली के अंदर जाके आप इसको करोगे शट डाउन. तो एग्जीक्यूटिव सर्विस को आप क्लोज़ करते हैं ताकि कल को कोई दिक्कत ना आए. राइट. क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लोज करना आजकल बहुत ज़रूरी है. जावा में आपको पता है जावा बेसिकली गार्बेज कलेक्टर जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली रन होता है. वो आप उसको आप मैनुअली ट्रिगर नहीं कर सकते जावा में. तो आई नो देर आर डिफरेंट वेज फॉर दैट, बट सिस्टम डॉट GC डॉट सिस्टम डॉट सिस्टम डॉट GC आप कॉल करके आप गार्बेज कलेक्टर को कॉल कर सकते हो. बट एनीवेज वो रन उस टाइम पे होता है जब उसको रन होना होता है. उसके बाद कंप्लीटेबल फीचर इज़ provides a versatile expressive way to handle asynchronous operations, compose tasks, manage exceptions and handle concurrent programming challenges in more efficient manner. It simplifies the development of concurrent and asynchronous code, making it easy to write scalable and responsive applications. तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो आज की पसंद आई होगी और आपको इससे इस कंप्यूटेबल फ्यूचर के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी और पता लगेगा कि क्या होता है कंप्यूटेबल फ्यूचर, और आप उसको किस तरीके से इस एग्जांपल के ज़रिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं. जावा 8 कोई, अगर आपके पास जावा 8 है या उससे ऊपर का कोई भी वर्जन है. फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप शेयरिंग एंड लाइकिंग माई वीडियोज़. थैंक यू.